सेकेंड। सो हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के हीलिंग सर्कल सेशन में। मैं सबको गाइडलाइंस बता देती हूँ आज के सेशन के लिए। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवन्स. दे आर बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential and trust each of us has the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. So thank you so much everyone for joining. आज के सेशन के स्पीकर हमारे साथ हैं ध्रुवा जी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है। हेलो ध्रुवा जी, मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के सेशन में। Thank you. I'm Dhruva Chakraborty. I am a breast cancer survivor. I have been treated since 2019, and 2019 around end of the year, I was initially detected with it's a Paget's disease they call. It's actually 0 stage of breast cancer. And then I was operated upon, and that went well. And the surgery was successfully done. And I was then I was allowed to carry on my normal scheduled life, because the 0 stage was not having any like a threat to my life. But within 6 months, what happened, I was again having some difficulty in, I was having some pain. And that caused me again to reach out to the doctors for checking, and then thorough checking, then PET CT, and all these things was done. And then it was detected like it is invasive carcinoma, that is in stage 3, ductal carcinoma. But actually, I am speaking all this about after about 3 years, and now today I'm completely, I have forgotten most of my journey, because it was that point of time, it was a bit painful. I was very much concerned. I was going through many documents, I reached out to Dimple, and I was involved in, every time I was going through some journals, some literatures, I was trying to find out a lot of information. But at the end of 3 years, I feel like it is, I've forgotten many things. Even just a few minutes ago, I was not able to recollect the name of the chemotherapy, the medicines which were given to me. And it was that point of time so important to me. And it's like life goes on, it's you just, those time it's a matter of time. After that passes, no, you are again the same you as you were before. So what I feel today is, while I'm saying all these things, for them who are undergoing treatment, or who have just finished treatment, or who have just entered to this diagnosis, who don't feel that it's just means a stage of life, it will pass. And now at this 2022, after so many researches, the treatment has become so developed, and this field, they have researched out a lot. And now for breast cancer, at least I can say, you need not to worry. It will be all good. Okay, only you have to follow doctor's advice. You have to understand certain things.
that there are some contribution from your diet, some contribution from your lifestyle, some contribution from your mindset, and some contribution about how you spend time. All these things are interrelated, you know. This disease from nowhere, everything is connected to you and your health, you and your health, actually. To my treatment, I will give you a brief idea of what happened. Then I was diagnosed stage 3, and I was definitely initially, I was shocked, as usual, everybody will be. And I was also started thinking what wrong I have done. I started remembering what the bad things I did, you know. Maybe in some point of time, as I'm also a human being, I might have shouted to someone, I might have done this thing. So for that only, maybe it has happened. No, it is not like that. It's just you have to accept that, okay, it is there, you have to fight, and you have to be very strong. Myself, I am very strong from my inside, you know. I know that I am very strong personality, and I never felt like I will not be able to recover. I saw many patients crying in the hospital. I said, why are you crying? You have to fight it. You cannot cry. You have your young children looking at you. You have your family members looking at you. You cannot cry. Even if you, for some moment of time, you of course feel very low, and that point of time crying helps you. That I do not deny, that time it helps you. But you have to be, in general, you have to be very strong, and you have to be fighting in nature, you know. By nature, you should be fighting. And that's really wonderful knowing about you, Dhruva ji. And काफी अच्छा है. You don't call me Dhruva ji. You just call me Dhruva. ठीक है Dhruva, I'll call you Dhruva. यहाँ पे एक रिक्वेस्ट था हमें, आपने बहुत सही बोला कि इट्स अ फेज दैट विल पास, निकल जाएगा टाइम. एक रिक्वेस्ट है, हम लोग सेशन को हिंदी में भी रख सकते हैं क्या? ट्राई करिए अगर आप. श्योर. क्योंकि उससे सब लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगा. हाँ, बट सो यू हियर. श्योर, हम हिंदी में बोलते हैं. तो उसके बाद क्या हुआ ना, थोड़ा सा भी जो टाइम था मेरा बहुत नेगेटिव था. दैट वाज ड्यूरिंग माय this chemotherapy, you know. That's a very bad part of this treatment. But you have to वो आपको उसके साथ ही रहना है. आपको स्ट्रॉन्ग रहना है. आपको मेंटली स्ट्रेंथ रखना ही है. किसके लिए? आज आपके चारों पास जिन लोग हैं वो आपके अपने हैं, एंड उन लोगों को वो आपको मिस नहीं करना चाहते हैं, आप भी उन लोगों को खोना नहीं चाहते हैं. तो इसलिए आपको अंदर से रहना है स्ट्रॉन्ग. हमको जब केमोथेरेपी में, मीन्स आई हैड सफर्ड अ लॉट. मेरे को पहले हाथ में जो केमो दिया, उसके बाद मेरा हाथ में थ्रोम्बोसिस हो गया. मेरा हाथ में ले नहीं पाया. देन उसके बाद पिग लाइन बनाया. पिग लाइन में इन्फेक्शन हो गया. फिर हाथ का थ्रोम्बोसिस और खराब हो गया. देन थर्ड मेरे को केमोपोर्ट दिया गया. वो केमोपोर्ट जब दे रहे थे, इट वाज जस्ट अ लोकल एनेस्थेसिया, एंड आई वाज बीइंग मींस मेरे को ऑपरेट कर रहे थे केमोपोर्ट इंसर्ट करने के लिए. तो मैं उस टाइम में मैं सोच रही थी, ओनली मेरे को दिमाग में सिर्फ मेरे 2 बेटियों का शक्ल याद आ रहा था कि आई वांट टू सी देम, आई वांट टू सी देम. तो वो सब करके ना आपको स्ट्रॉन्ग रखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उस टाइम में कुछ खाने का रिस्ट्रिक्शंस जो भी रहता है, इन्फेक्शन नहीं होने के लिए. इन्फेक्शन तो मैक्सिमम टाइम हो सकता ही है, उसमें डरने का नहीं है. बट टाइमली हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर के पास पहुंचना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डॉक्टर एक कुछ फिगर बताते हैं, 100.4 शायद 100.4 बुखार चलने से आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाइए, आई वाज टोल्ड. एंड उसमें आपको क्या है, वो सब चीज आपको पूरा रिलीजियसली फॉलो करना है. फॉलो करके आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है. दे विल टेक केयर ऑफ यू.
कुछ सोचने का ही बात नहीं है। फिर उसके बाद मेरा वो दैट पीरियड वाज वेरी लो, कीमोथेरेपी का पीरियड। धीरे धीरे सब बाल चला जाता है, यू नो। मेरा जब फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था ना, तो मैं मेरे ऑफिस में मैं यही बोलती थी कि चलिए मेरे को तो कीमोथेरेपी वगैरह देना नहीं पड़ा। तो मेरे बॉस बोला देखो तुम्हारा लाइफ से तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कीमो देना भी पड़ा तो क्या है। मैं बोला नहीं नहीं, मेरे को वो सब नहीं करना है, मेरा बाल चला जाएगा, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। लेकिन जब बाद में मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ एंड बाल चला गया, धीरे धीरे मैं उसी में अकस्टम्ड हो गई। मेरे को अगर कोई बोलता था बाहर निकलने के टाइम तुमको क्या सर को कवर करना है, मैं बोलती थी नहीं, आई नीड नॉट टू कवर इट। मेरे को आई टुक इट एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड वो मतलब बाल चला गया, उसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ माई ट्रीटमेंट। तो ऐसे स्ट्रेंथ आपको रखना होगा। आपका मतलब इवन आपके बाजू में जो है, अगर आप टूट पड़ेंगे तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको भी हिम्मत रहे, इसीलिए आपको भी हिम्मत रखना होगा। खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बहुत प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है, तो आपको केमो में फाइट करने में अच्छा होता है। केमो का फाइट करने के लिए बहुत फ्रूट्स, बहुत वेजिटेबल्स एंड बहुत प्रोटीन आपको रखना पड़ता है, जो आपको खाने को मन करता भी ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके पानी भी बहुत पीना पड़ता है। तो हम पानी पी नहीं पाते थे। मेरे को ऐसे भी बहुत पानी मैं कभी भी नहीं पी पाती हूँ। तो उस टाइम में मैं थोड़ा ग्लूकोन डी डाल के, कभी ग्लूकोन डी डाल के, कभी नींबू डाल के, ऐसे करके पानी पीती थी। फिर मैं हॉस्पिटलाइज बहुत बार हुआ ड्यूरिंग केमो, बट उसके बाद हो गया, मेरा सर्जरी भी हो गया। तो सर्जरी में आई टुक अ डिसीजन दैट मेरे को मतलब मस्टेक्टोमी करना था। तो मैं डॉक्टर को बोला मेरा डबल मस्टेक्टोमी चाहिए हमको। ये सब झंझाटा में हम फ्यूचर में कभी नहीं पड़ना चाहते हैं। तो डॉक्टर्स वर रिलक्टेंट इनिशियली, वो तो कैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे नहीं ऐसे होता नहीं है। लेकिन मैं लास्ट दिन तक मैं बोला नहीं मेरे को चाहिए। तो जस्ट सर्जरी के प्रीवियस डे में डॉक्टर ने एग्री किया, डॉक्टर बोला ओके ठीक है। तो फिर हम सर्जरी हुआ मेरा, देन रेडिएशन हुआ। रेडिएशन 15 सेशन वाज, उसमें भी एक्चुअली मेरे को ऐसे भी बहुत वॉमिटिंग का टेंडेंसी है। मेरा जब मतलब 2 बेटी जब हुई थी, व्हेन आई कंसीव्ड एंड आई वाज प्रेग्नेंट, एटलीस्ट अप टू 9 मंथ्स तक मैं वॉमिट ही करती रहती। तो वो मेरा टेंडेंसी बहुत जनरली नॉर्मली बहुत ज्यादा है। तो इवन रेडिएशन के टाइम में भी मेरे को वॉमिटिंग का सेंसेशन होता था। बट वो सब क्या है ना, वो टाइम को जस्ट ये करते रहना है कि चले जाने दो, ये टाइम जाने दो जाने दो जाने दो, ऐसे करके वो टाइम पास हो गया। उसके बाद मेरा ट्रांसट्यूजुमैब का ट्रीटमेंट हुआ, मेरा HER2 पॉजिटिव है बोल के। वो ट्रीटमेंट चलता रहा कितना दिन, पूरा 1.5 साल। उसके बाद लास्ट नवंबर को माय ट्रीटमेंट सेशन इज ओवर ना। उसके बाद मेरा केमोपोट है। आज के दिन में मैं सभी भूल गई, सब कुछ भूल गई, मैं सब कुछ मतलब भूल के रहती हूँ, मेरे को याद भी नहीं आता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रह गया है, लाइक सम न्यूरो प्रॉब्लम्स, सम नर्व का प्रॉब्लम, सम पैर के नीचे मेरा सेंसेशन नहीं आया अभी तक। फिर ये केमोपोर्ट बहुत प्रॉब्लम करता है, मतलब पेन करता रहता है। तो उसके लिए केमोपोर्ट को फ्लशिंग करना जरूरी होता है। इवन टुडे मॉर्निंग आल्सो आई वेंट टू हॉस्पिटल फॉर फ्लशिंग। तो ये सब करती हूँ, बट दोस हैव बिकम पार्ट ऑफ माय रूटीन लाइफ। आई नेवर रिमेम्बर कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है, मेरा इधर दुख रहा है, मेरा इधर शोल्डर में मेरा मसल पेन हो रहा है, कि मेरा नर्व का पेन हो रहा है। आई वाज गिवन सम मेडिसिन फॉर नर्व पेन, बट मैं लिया नहीं। दैट इज नॉट गुड ऑफ कोर्स। बट लेने से मेरा प्रॉब्लम होता है कि मैं बहुत सोती रहती हूँ, मतलब दिन में 8, 9, 10 बजे तक मैं उठ ही नहीं पाऊंगी। तो ऐसा कुछ दिन लेने के बाद मैं छोड़ दिया, मेरे से वो होगा नहीं, उससे अच्छा जो है अभी
वो सब भूल जाने का है, वो सब याद नहीं करने का। दिन वाला जो डेली जो रूटीन है, जैसे हम पहले रहते थे, उसी रूटीन में इन्वॉल्व हो जाने का, उसको कुछ भाव ही नहीं देने का। उसको भाव नहीं देंगे तो वो आपको पीछे नहीं पड़ेगा, आपका मतलब टाइम खराब नहीं कर सकता है। वो जैसे है उसको रहने दीजिए। ओके, ओनली आपको ध्यान रखना है कि हमको हेल्दी डाइट लेना है, हमको एक्सरसाइज इज मस्ट, वो करते जाना है। वॉकिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज वो करना है। हमको कैसे अपने आप को और खुश रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों को मन में आता है ना कि ये ऐसा बोल दिया, वो ऐसा कर दिया। हाँ, ये सब चीज अब जितना दूर रखो उतना अच्छा है। और थोड़ा सा एक दूसरा चीज है, हम बोलेंगे these are all not scientific, means not medically influenced, but these are my own philosophy influenced, means सबको सुन के सबको जान के जो मेरे को लगा, आपको खुश रहना है, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, आपको हर छोटा चीज में सबको फॉरगिव करना है, थैंक्स बोलना है। ऑल दिस गुड गेस्चर्स यू ब्रिंग इनटू योर लाइफ, जो हम ना भूल जाते हैं। हम लोग जब बहुत अपना लाइफ में पीक में पहुंच जाते हैं ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाता है, हम थोड़ा घमंड हो जाते हैं, हम थोड़ा दूसरे को विचार करने लग जाते हैं। तो those are all negative things. You remove all negative things from you. And आप यही सोचिए कि आज आप चारों पास जो भी है वो आपके साथ है, आप उनको क्यों देख पा रहे हो? बिकॉज आप आज के सुबह जाग के उठे हो, दैट इज बाय गॉड्स ग्रेस। वो आपके लिए एक नया दिन लाए है, उसमें आपको बहुत खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई रिसेंटमेंट नहीं रहना चाहिए। तो यू शुड बी वेरी हैप्पी, खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका डाइट इज वेरी इम्पोर्टेंट, डाइट को साथ में रखना है। मतलब बहुत उल्टा पुल्टा देखिए, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते। हम भी आज के दिन में कभी कभी बाहर तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, बट जितना कम हो सकता है उतना अच्छा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है आपको डाइट में हमेशा रखना चाहिए, जैसे नट्स है, या तो आपका कुछ प्रोटीन्स है वो भी रखना जरूरी है। चिकपीस है जैसे, मतलब वेज प्रोटीन्स, वो भी बहुत जरूरी है। देन नॉन वेज हम तो बोलेंगे कम करने के लिए, हम भी पूरा छोड़ नहीं पाए हैं, बट कम करना अच्छा है। बिकॉज स्पेशली आज के दिन में जो 45 डेज में बड़ा हुआ चिकन मिलता है आपको, वो तो खाना ही नहीं चाहिए। हम बोलेंगे वो तो खाना ही नहीं चाहिए। इवन द पोल्ट्री एग्स, वो भी बहुत डेंजरस है। बट ठीक है, आपको ट्रीटमेंट चलते हुए तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता ही है। हम सब कोई तो गुड सोर्सिंग हमेशा नहीं कर पाते हैं। जैसे हम अभी एक गुड सोर्सिंग किया है, हमारे एक मतलब कैलकाटा में एक डेवलप हो रहा है एक बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनिक फूड। इट इज नॉट लाइक मेनी पीपल डू नॉट बिलीव, दे से वो ऑर्गेनिक के नाम पे बेचता है, ऐसा नहीं है। दिस कपल दे आर ट्राइंग फ्रॉम देयर ओन मेन सेल्फ, तो ऐसे थोड़ा सोर्सिंग कर सकते हैं तो अच्छा है। और अदरवाइज एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आप हम बीमार है, हमको ये तकलीफ है, हमको चलने में दिक्कत हो रहा है, यू नो, एवरी टाइम आई गेट अप आई फील प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग माई वॉक। हर बार जब हम बैठने के बाद उठते हैं ना, मेरे को चलने में पैर में दिक्कत होती है, हम थोड़ा लिंपिंग भी कर जाते हैं कभी, बट उसको सोचने का ही नहीं, उसको भाव ही नहीं देने का। आपको काम करते रहना है, आपको चलना है, आपको मोबाइल रहना है। मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं तो बहुत बोल गया, अभी आपको कुछ पूछना है तो बोलिए। बिल्कुल मैम, मुझे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। एंड आपने जो अभी तक बताया बहुत इंस्पायरिंग था एंड काफी हेल्पफुल भी था काफी पेशेंट्स के लिए। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि आपको पहले से भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी या कोई फैमिली हिस्ट्री थी कैंसर में? नो, मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर की। एंड यू नो, आई हैड नो हेल्थ प्रॉब्लम अदर देन थोड़ा गले में ऐसा
चेंज ऑफ सीजन में मेरे को गले में प्रॉब्लम होता था. आई वॉज सो प्राउड कि मेरे को ना प्रेशर है, ना शुगर है, ना कोई प्रॉब्लम है. आई एम सो वेल बिल्ट, आई एम सो फाइन, आई एम सो हैप्पी. तो ऐसे आई हैड अ सेंस कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला. But one fine morning, I had a tremendous pain in my left breast, and it was horrible. And मेरे जैसा लोग कभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ. हाँ, मैं इंजीनियर होके भी मैं क्या करती हूँ ना, मैं मेडिसिन का बहुत मतलब मेरे को आइडिया है. तो मेरे को कुछ भी होता रहता है, मैं खुद से कर लेती हूँ, ठीक ठाक कुछ भी कर लेती हूँ. लेकिन उस दिन I felt I have to reach out to someone to check what has happened. I had no idea in my means मेरा खराब सपना में भी कभी नहीं आया मेरे साथ ऐसा हो सकता है. तो I just it was Saturday evening. मैं उस टाइम में कोई डॉक्टर नहीं मिला मेरे को, but I was frantically मैं कोशिश कर रही थी कोई डॉक्टर के पास पहुंचने का, because it was a sudden and it was a tremendous very strong pain. तो उसके बाद next day I went there and I was not diagnosed correctly for 1.5 months, 2 months. Okay, about 2 months I was not diagnosed, but I had it in my mind. Then I started reading. I started reading all various sites, and then I had an idea that it is not correct what I have been treating. I have been treated. मेरे को हार्मोन मेडिसिन दिया जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है. तो मैं एक दिन वही डॉक्टर के पास जाते हुए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए, मैं अचानक से मेरा डिसीजन चेंज किया. मैं बोला कि मेरे को उस कैंसर हॉस्पिटल में ले चलो. तो ड्राइवर ने लेके गया, एंड देन इट स्टार्टेड ऑल विथ लाइक इट वाज डायग्नोस्ड करेक्टली एंड इट वाज ट्रीटेड करेक्टली. एंड द डायग्नोसिस एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम and treatment at the right point of time is very important. You know, after मेरा ये इंसिडेंट होने के बाद मैं मेरे नेबर को बताया कि मैं तो अभी ट्रीटमेंट में मेरा चलता रहेगा, तो मेरी बेटी को अगर कुछ जरूरत हो कभी तो आप थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा. मैं अगर हो भी सकता है कभी कभी हॉस्पिटल में भी रहूं, तो आप थोड़ा हेल्प करिएगा. तो मेरा ये सुन के she just went for a checkup, because she also had something in her mind, and she was also diagnosed with breast cancer, and she was again treated with me only. And मेरा हम लोगों को parallel treatment हुआ फिर बाद में. So awareness is another very important thing. Everybody should be aware, but I think in this group all are now going through this phase. So only thing आपको mental strength रखना है, कभी अपने आप को मजबूर नहीं समझने का, कभी ऐसा नहीं समझने का कि देखिए कल हमको हार्ट अटैक भी हो सकता है, राइट? दैट्स नॉट कैंसर, बट आई कैन डाई. परसों हमको रोड में एक्सीडेंट भी हो सकता है, आई कैन डाई. तो डर मतलब डरना नहीं है किसी भी चीज में. इसका तो अच्छा है ट्रीटमेंट है, आपका कितना अच्छा ट्रीटमेंट है. इट इज सो वेल प्रूवन, वेल नोन. There is a method which you can avail, but there are many things which are destined for the people, but they do not know even the उसका मतलब पहले मोमेंट तक उसको पता नहीं रहता. तो इसलिए इस बीमारी में अभी बिल्कुल ऐसा सोचने का नहीं कि मेरा क्या होगा. एंड डोंट रिलेट, नेवर रिलेट दिस डिजीज टू डेथ. जो जनरली पीपल का वो कैंसर का एक तो क्या फोटो लगाता है ना, दैट करकट एंड बोल के जो is this वो चीज is I don't like actually. That's absolutely a difficult, it's not digestible. What is that? It is a disease, and it is a treatable disease, and now it is a disease which has आपका हार्ट अटैक होता है, आपको सेरिब्रल अटैक होता है, आप पैरालिसिस हो जाते हो. क्या ट्रीटमेंट है? नथिंग. बट इस डिजीज में आपको बहुत ट्रीटमेंट है. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो कभी ऐसा सोचने का नहीं कि इट इज जी जी इट्स मींस ये डिजीज के बाद एक चीज हो जाता है हमको, जो बेसिकली हुआ है,
I have become very much sensitive, means and sensible to my surroundings, you know. वो चीज मेरे को शायद थोड़ा कम हो गया था, वो अभी थोड़ा बढ़ गया, and that is a good thing. जी मैम। तो मैम मेरा एक और क्वेश्चन था कि मतलब आपने इन टोटल फिर क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए थे उस टाइम पे? मेरा ट्रीटमेंट का था, मीन्स इट वाज न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी. New adjuvant chemotherapy means you will be given 4 epirubicin chemotherapy, then 4 paclitaxel chemotherapy. Then I was operated upon. It is my treatment was in Tata Cancer, Kolkata. Okay, and okay. Then first this 4 plus 4 epirubicin paclitaxel chemotherapy. Then I was operated upon. That was surgery for mastectomy, and then after mastectomy, it was radiation. Radiation, I was given 15 session, and that unit I have forgotten. I think 40. Then it is having a unit. Okay, the means intensity of the ray. So that I have forgotten that unit. So it was 15 radiation sitting, and then one with paclitaxel, this trastuzumab treatment started. Okay, and trastuzumab lasted for 17 doses. 17 doses of trastuzumab, because I am having HER2 positive. That's why this trastuzumab is to be given. Then now I am on regular checkup every 3 months. I go for a checkup. Then also doctors sometimes doubt some means issues, and I was I think 2-3 months back मेरे को एक बार PET CT किया गया, तो nothing is alarming. Recently मेरे को एक biopsy भी किया गया, तो मेरे को डॉक्टर बोला आपको एक इधर ट्यूमर है, तो उसको हम बायोप्सी करेंगे, तो आप आजकल ही जितना जल्दी कर सकते हो. मैं बोला नहीं, अभी पूजा है, हम पूजा के बाद ही करेंगे. हाँ, तो डॉक्टर बोला ठीक है, पूजा में आप फिर चिंता मत करिएगा, आप ये लेके टेंशन मत करिएगा. बोले नहीं, मेरे को आजकल टेंशन होता ही नहीं है, और हमको पता है कि आप करेंगे वो बायोप्सी, फिर वो कुछ मतलब आई एम कॉन्फिडेंट फ्रॉम माई इनर सेल्फ कि कुछ होगा नहीं. तो मेरा बायोप्सी भी किया गया, और इट वाज ओके, कुछ था नहीं. दैट वाज अ फैट डिपोजिशन. Okay, that tumor is not a malignant tumor. It is a fat deposition. So anyway, but my doctor has become very caring because मेरा second time relapse हुआ ना, तो that's why doctor को अभी वो बोलते हैं आपको कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है कभी भी. तो I will go on checking everything कि आपको कभी कुछ ना हो. Caring है. So that goes on and I'm fine. जी मैम। तो मैम जब आपका ये सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, तो उस टाइम भी जैसे थोड़े जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हुई उस वक्त? यस यस यस, मैं एक बोल रही हूँ ना, मैं 3 साल में मैं सब कुछ भूल गई हूँ, लेकिन मेरे को जो याद है, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाती थी. ओके, खड़ा नहीं हो पाती थी, मैं खाना नहीं खा पाती थी, मतलब मैं पूरा आई एम a bit healthy. You can my weight is I think अभी भी 78 kg होगा, but उस टाइम पे मैं बहुत लूज कर गई थी, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाती थी, पानी नहीं पी पाती थी. बट वही थोड़ा टाइम बाद ना, थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा एग का व्हाइट पार्ट, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा साग, पालक साग, ऐसा ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर करके खाती थी. और फिर और साइड इफेक्ट्स में हुआ था एक बार बहुत ज्यादा इचिंग प्रॉब्लम. वो पैक्लिटैक्सेल जैसे ही चालू हुआ ना, वो अच्छा, मैं इपिरुपिसिन के टाइम में मैं बोलती हूँ, मेरा व्हाइट ब्लड जो सेल है WBC, दैट यूज्ड टू फॉल टू 300.
एवरी टाइम। वो देखे आया मैं केमो, 2 दिन के बाद मेरा हाई फीवर, रात रात में जाके हॉस्पिटल में एडमिट, फिर वो एक एंटीबायोटिक का कोर्स चला, पूरा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मींस इंट्रावेनस, एंड वो 7-8 डेज का एडमिशन। एक बार तो मेरा 13 क्या 21 डेज का एडमिशन था, मैं हो ही नहीं पा रही थी ठीक। तो वो सब दिन तो चला गया। मैं मतलब अभी और मेरे को कुछ मतलब ऐसा भी नहीं लगता है कि आहा क्या हुआ था, ऐसा भी मैं नहीं सोचती हूँ। मतलब मेरे को कुछ नेगेटिव फीलिंग आता ही नहीं है वो सब में। मीन्स उस टाइम में थोड़ा क्या हुआ था ना, मेरा हस्बैंड जो है ना, दैट इज वेरी पॉजिटिव पॉइंट, जो केयर गिवर्स है ना, दे शुड बी वेरी पॉजिटिव। मेरा हस्बैंड मेरे को एक बार भी नहीं बोला हाँ तुमको ऐसा हो रहा है, नहीं। अच्छा क्या प्रॉब्लम है, ओ ठीक है तुम नहीं चल पा रहे हो, अच्छा ठीक है चलो इधर कंधा में हाथ रखो, चलो हम पकड़ के ले चलते हैं। हाँ, तो इट वाज ही नेवर, मतलब मेरे को कभी फील नहीं करने दिया कि मैं बेचारे बन गई, मैं बेचारी बन गई, ऐसा कभी नहीं फील होने दिया। और वो इतना मतलब हंसी खुशी, इतना अच्छा उनका एटीट्यूड है ना, ही इज वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। ही इज फ्रॉम हिज मतलब द पर्सन हु शुड बी केयर गिविंग, नो ही शुड बी वेरी पॉजिटिव। वो पेशेंट के पास जाके आहा तुमको क्या हुआ, ऐसा नहीं बोलने का, उसको कुछ नहीं हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी हो रहा है उसको सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। तो उसी में मेरे को बहुत अच्छा मिला था, मतलब सपोर्ट मिला था, तो मेरे को कभी खुद को दुखी नहीं लगता था। मतलब मैं एक एक बार कभी ऐसा हो जाता था, मेरे को ब्लड थिनर दिया जाता था, तो ब्लड थिनर में मेरा ना जैसे ही वो एडमिनिस्टर होता था, तो पता नहीं क्या होता था, मेरा पैर पूरा लड़खड़ा जाता था, मतलब आई एम नॉट एबल टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट। डॉक्टर्स नहीं बोल पाते थे क्यों होता था, बट बहुत प्रेशर लो हो जाता था। और हम मतलब आई थिंक ये कोई भी मेडिसिन है ना, उसका हर एक के ऊपर डिफरेंट असर होता है। मेरा हुआ है बोल के किसी दूसरे का होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे को ऐसा ऐसा हुआ तो होता था, तो मैं खड़ा नहीं हो पाती थी, मेरे को स्ट्रेचर में आके लेके जाता था। तो दैट टाइम आल्सो मतलब ही यूज्ड टू बी सो काम, कि उसको देख के आपको डैडी लगेगा नहीं कि आपको कुछ हो गया है, बहुत बड़ा चीज ऐसा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमको कुछ फील नहीं होता था। लेकिन खुद का जो डिफिकल्टीज होती थी वो मैं बता रही हूँ। अब खाने का प्रॉब्लम है, फिर इचिंग का प्रॉब्लम था, वो तो मैं इचिंग कर करके मतलब मेरा पूरा ये हो गया था, वो फिर नहीं ब्लैक ब्लैक हो जाता है। आप कुछ बोलेंगे क्या? नहीं नहीं आई एम नॉट मैम। एबल टू हियर यू। हेलो। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो। आपका माइक म्यूट है। मैम मैंने अपना माइक अनम्यूट किया है। नहीं हेलो। आपका नहीं, वो जो मिस्टर एडन वाला, he wants to say something. अभी हाँ अभी सुन सकते हैं आप? हाँ हम सुन सकते हैं, बोलिए। आप आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कर रहे हो? नहीं आप मैं ट्रीटमेंट कर नहीं रहे हो? किया। हाँ आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो? हम तो सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है। अच्छा अच्छा। हम कोई आयुर्वेदिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट, केमो? हाँ एलोपैथिक केमो लिए है मैं, केमो सर्जरी रेडिएशन। अच्छा जो अच्छा। हाँ ऐसा ट्रीटमेंट मैं लिए हूँ। जी। तो वो पूछना अम, था आयुर्वेदिक कैसा है, क्या है? जी। माज आयुर्वेदिक जी मैं कैसा आयुर्वेदिक है? ट्रीटमेंट में हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने नहीं लिया है, तो हम नहीं बोल पाएंगे। माज जी मैं एक अच्छा चीज अच्छा। एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगी। एक्चुअली जो भी क्वेश्चन है ना वो हम लास्ट में लेते हैं, तो आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं ना प्लीज वो हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि अभी वो अपना पूरा बता रही हैं, उसके बाद फिर हम आपके सारे डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है मैडम। जी जी जी, थैंक यू। ओके। जी मैम। अच्छा तो वेयर आई लेफ्ट, या कुछ पैक्लिटेक्सेल से होता है,
वो बहुत ज्यादा आपको इचिंग होगा पूरा बॉडी में इचिंग होता था। तो आई वाज गिवन आई थिंक सम मेडिसिन आल्सो, बट दैट डिडंट वर्क, दैट डजंट वर्क। एविल एक्चुअली, एविल वो इतना ज्यादा मतलब इचिंग में कोई काम नहीं करता है। तो उसके बाद वो पैक्लिटेक्सेल 4 सेट्स खत्म हो गया, तो उसमें नर्व पेन भी बहुत होता है। उसके लिए आपको मेडिसिन दिया जाता है, बट वो मेडिसिन तो कम काम करता है, पेन ज्यादा काम करता है। तो आपको मतलब बहुत रिलीफ मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, आपको मेडिसिन लेने से शायद थोड़ा कम होता है इम्पैक्ट। उसके बाद मेरा सर्जरी के बाद बाबा बहुत दिन मेरा को बहुत झेलना पड़ा। सर्जरी में मेरा सर्जरी, हाँ, मेरा तो डबल मास्टेक्टमी था, तो उसमें ड्रेनिंग वगैरह बहुत प्रॉब्लमेटिक था। मतलब मैं सो नहीं पाती थी, बिकॉज मेरे को तो एक कोई भी साइड में मैं सो नहीं पाती थी। तो सिर्फ स्ट्रेट, मैंने तब मेरे को लगता था मेरा इसे मतलब बॉडी का 2 पार्ट करके फिर जोड़ दिया। मेरे को तब लगा नहीं मैं, क्योंकि मैं कभी खुद से कुछ कर पाऊंगी, मतलब हाथ कभी ऊपर उठा पाऊंगी, मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगी, मैं खुद से ड्रेस पहन पाऊंगी। आई यूज टू थिंक मैं बाद में क्या करूंगी। मैं सुबह मेरे को मतलब मैं सर्विस करती हूँ, तो मेरे को ऑफिस के लिए मैं 10 मिनट में रेडी होती हूँ, पूरा नहा के धो के रेडी होके पूरा 10 मिनट में आई गेट रेडी। मैं सोचती थी कि मैं तो फिर कभी और जा ही नहीं पाऊंगी ऑफिस। ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरा जैसे बॉडी का 2 पोर्शन करके जोड़ दिया, मतलब इट इज थ्रू एंड थ्रू स्टिच है ना, तो ऐसा लगता था। तो लेकिन विथ टाइम मीन्स इट इज एवरीथिंग गोज, यू नो, एवरीथिंग गोज नाउ। उसके बाद सर्जरी के बाद रेडिएशन में भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो था। वही मैं बोल रही थी ना कि मेरा तो वॉमिटिंग बहुत आता था, मतलब जस्ट रेडिएशन लेने के बाद ना तुरंत हम घर नहीं आ पाते थे, उधर हम रुकते थे कुछ टाइम रुक के मैं थोड़ा सा अपने आप को संभाल के फिर आती थी, क्योंकि तकलीफ होता था बहुत। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरे को एक चीज बहुत कम है कि ये जगह काला क्यों हो गया, वो जगह गोरा क्यों हो गया, ऐसा फीलिंग मेरे में नहीं है। I don't bother for all these things. It's very important that I'm talking today, like, right, with you. I speak, actually I love talking. तो मैं बहुत बोलती हूँ, मैं हर जगह बहुत बोलती रहती हूँ। तो मेरे को वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक किसी नया कि कोई मिला हमको साथ, उसके साथ हमारा बात हुआ, उसके बारे में हम जाने, हमारे बारे में वो जाने, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये जगह में थोड़ा क्या एक उंगली टेढ़ा हो गया, क्या हो गया, ये सब चीज आई डोंट बॉदर। तो उसके बाद तुम तो डॉक्टर, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद ट्रांसटूजुमाब में भी मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। ट्रांसटूजुमाब में चाहिए मेरे को वॉमिटिंग का बहुत प्रॉब्लम है, मैं बोला ना। तो ईच डे हम ट्रांसटूजुमाब लेके घर में आते थे, मैं पूरा सो जाती, मतलब हमसे और उठा ही नहीं जाता था कि। तो ठीक है, वो सब करके करके चला गया। 17 पहले तो गिनते थे, 1 2 3 4, कब तक 17 खत्म होगा, तो देखते देखते चला गया 17 अभी। तो इसके बाद भी 1 साल चला गया, तो इट्स फाइन, एवरीथिंग इज नाउ नॉर्मल। जी मैम, इनफैक्ट आपने जो पॉजिटिविटी वाली बात बोली ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जितने हम पॉजिटिव रहते हैं उससे उतना ही अच्छा आउटकम आता है फिर हमारे ट्रीटमेंट का भी। सब कुछ पॉजिटिव रहना चाहिए। इधर रखना तो ही नहीं है कि मेरे को क्या मैम, हुआ है, इधर रखना ही नहीं हाँ है। बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड मैम मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक तब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो ऑब्वियसली ऐसी काफी टाइम आता है जब ना टेंशन बहुत होती है, मेंटल स्ट्रेस काफी होता है, तो उस सब को मैनेज करने के लिए आपने क्या किया? हाँ, मैंने लिखना चालू किया थोड़ा सा। नहीं, मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे को बोली कि तुम ये करो, तुम रुको, अभी तो प्राणायाम करो,
फिर तो मेडिटेशन करो, वो मेरे को कुछ मेडिटेशन का वीडियो भेजी थी, तो ये करो। तो मेरा ना थोड़ा एक प्रॉब्लम है, वो मेडिटेशन 28 मिनट्स या 58 मिनट्स आई कैनॉट कीप। मैं थोड़ा चंचल मतलब चंचल स्वभाव की हूँ, मतलब मैं थोड़ा शांत बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरा तो फिर मन दूसरी जगह चला जाएगा, विच इज हैविंग नो मीनिंग, राइट। तो उससे अच्छा मैं थोड़ा चल के किसी के साथ बात कर लूँ, दैट इज बेटर फॉर मी। हाँ, मेरे को लगता है। तो मेडिटेशन तो मैं करती हूँ, लेकिन 10 मिनट, उससे ज्यादा मेरे से बैठा नहीं जाता है। बट आई नो दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेरे को बहुत हेल्प किया था। इट इज अ फेथ एक्चुअली। when when you are very low from mind, तब आप सब चीज पे भरोसा कर लेते हो। तब आपको लगता है शायद ये चीज पढ़ने से भी, अगर कोई बोल दिया आप अगर ये चीज पढ़ो तो आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप बिलीव करते हो। उस टाइम के लिए आप बिलीव कर लेते हो। तो मेरे को एक स्तोत्र मेरा एक रिलेटिव भेजे थे, तो कि वो तुम सुनो, काली माँ का स्तोत्र है। तो वो मैं रिलीजियसली हर रोज सुबह एंड शाम, वो मैं आज भी चलाती हूँ ना, तो मेरे अंदर इतना अच्छा फीलिंग होता है। शायद उस टाइम से दैट आई एम कैरिंग दैट फीलिंग। तो वो सुन के मेरे को लगता था हाँ, शी इज देयर, तो शी विल हेल्प मी। देखिए, किसी के लाइफ में बहुत लो टाइम आएगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन लो टाइम में आपको कुछ चीज पकड़ना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अपने आप को छोड़ सकते हो। आपका टेंशन उसका टेंशन है, आपका नहीं है। वो दैट फेथ, दैट स्ट्रॉन्ग फेथ, हम ये नहीं बोलेंगे कि भगवान है भगवान नहीं है, बट क्या है ना, वो जो वो आपको रिलीफ देता है। आप किसी चीज पे जो फेथ रखते हो, वो किसी भी चीज पे रख सकते हो। जैसे मेडिटेशन, मेरे फ्रेंड बोली तुम अगर ऐसा हर रोज 10 मिनट करोगी ना ध्रुवा, तो तुम्हारा ना बहुत मतलब अंदर से हीलिंग हो जाएगी। एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग, आई वांटेड टू हील माई सेल्फ, राइट। तो मैं सोचा अगर हीलिंग हो जाएगी तो हमको तो तब टाइम ही टाइम था, क्योंकि कुछ तो करना नहीं है, मैं बीमार आदमी हूँ तो करना क्या। तो टाइम पे हम तब बैठ के वो हीलिंग सेशन करते थे। तो उसमें क्या होता था, तुम्हारा मन का शांति जो बोलता है दैट यू गेट। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हाँ, आप अगर वो करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। दूसरा चीज, आपको किसी पे भरोसा करना है, वो कोई भी चीज हो, उसके ऊपर आप भरोसा रखिए। आपका प्रॉब्लम आप उसको दे दीजिए, तो इट विल गिव यू स्ट्रेंथ। तो आपका मन स्ट्रांग होगा। मेरे को हॉस्पिटल के नर्सेस बोलते थे कि आंटी आप इतने स्ट्रांग कैसे हो। हम बोलते थे देखो, हम स्ट्रांग नहीं, मतलब रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। स्ट्रांग हो मतलब हम मेरा प्रॉब्लम दूसरे को दे दिए हैं, तो हम स्ट्रांग है। हम जब सुनते थे ना वो आद्या स्तोत्रम, इट्स कॉल्ड आद्या स्तोत्रम, इट्स फॉर काली माँ। तो वो जब सुनते थे हम बोलते थे कि ठीक है, अभी तो तुम हो, यू आर देयर इन सम वे, so I'm giving you my problems and you solve it. It's not my problem, it's your problem now. You have to solve it. I want to stay with my daughters for some more years. I don't want to go. तो आपको कैसे करना है वो आप जानो, लेकिन आप मेरे को ठीक करो। तो वो चीज में मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथ आई थी। ठीक है, तो लो पीरियड तो आएगा ही आपको। कभी कभी भी मैं एक दो बार रोई भी हूँ। मैं एक बार लिखना चालू किया कि ठीक है, मेरे मन के अंदर जो है वो लिख डालो। मैं लिखा और मेरे घर में सबको ही वो लेके, अच्छा तुम क्या लिखा पढ़ते हैं। तो मैं बोला अरे पढ़ो मत, वो तो मजाक बना दिया पूरा। तो हमको हंसी आ गया वो चीज लेके कि आई एम फीलिंग सो लो। हाँ, एंड वो चीज फिर मेरा मन से बाहर चला गया। पता है ना, मन के अंदर मत रखो कुछ भी, उसको बाहर ले जाओ, उसको लिख डालो। तो मेरा हस्बैंड बोला देखते हैं तुम क्या लिखे हो, हम पढ़ते हैं। हम बोले ठीक है पढ़ो, लेकिन हंसो नहीं। फिर बोलता है अच्छा तुम इतना कुछ लिख डाला। मैं बोला हाँ, मैं इतना कुछ लिख दिया। अभी लिख दिया तो मन हल्का हो गया। There are many ways to relieve your, मतलब to relieve stress.
राइट मतलब वो ये कि माइंड में नहीं रखना चाहिए, या तो नहीं, किसी से बात करके, टेंशन मन या के अंदर मत रखो, किसी को बता दो। हम एक्चुअली मेरा दूसरे भी प्रॉब्लम्स कुछ भी होता है ना, हम सबसे सजेशन लेने के लिए बहुत लोगों को बता देते हैं, तो बता दो तो प्रॉब्लम गॉन। ऑफिस में भी कोई टेंशन हुआ ना, कुछ गलती हुआ तो जाके बॉस को बता दो कि ये गलती मैं कर लिया, तो अभी वो जैसे ही बता दिया, वो तुम्हारा टेंशन नहीं है, वो बॉस का टेंशन। मतलब सब बिल्कुल कोई मिलके तब इन्वॉल्व हो गया है उसमें, राइट? यू आर नॉट अलोन देन। वो अकेला फीलिंग रखना नहीं है, सबको बोल देने का ये प्रॉब्लम है। राइट तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि फिर आपने लाइक अपने ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद कोई लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए, मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस? मैं जैसे पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी, मैं थोड़ा सा मतलब मैं बहुत काम करके थक गई, ऐसा मेरे को एक फीलिंग था। हाँ, लेकिन अभी मेरे को लगा वो काम करने से लोग थकते नहीं है, काम तुमको जितना करो उतना एक्टिव रहो उतना अच्छा है। तो डाइट में मैं चेंज किया। आई हैव टेकन डाइट सजेशन फ्रॉम जेनॉन कोनली। आई टुक मींस गाइडेंस फ्रॉम डॉक्टर्स, एंड देन वो डाइट मैं फॉलो करती हूँ। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम 100% फॉलो कर सकते हैं, बट 80% जैसा हम वो डाइट को फॉलो करते हैं, ठीक है? बिकॉज डाइट इज वन ऑफ द very important thing which keeps you fighting, always fighting against anything. Okay, so that is very important. then lifestyle में एक चेंज मेरा हुआ, मैं बहुत मतलब अपने आप में बिजी थी। अभी मैं सबके साथ बिजी रहना चाहती हूँ, सबके साथ मिलके बिजी रहना चाहती हूँ। That's another change. These are the changes. मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देती हूँ अभी। पहले मैं अपने आप के लिए सोचती नहीं थी, मतलब मैं पूरा दिन या तो ऑफिस कर रही हूँ, या तो बच्चे के बारे में सोच रही हूँ, या तो उनका पढ़ाई, या तो उनका खाना, या तो ये सब सोचती थी। अभी मैं खुद के लिए भी टाइम देती हूँ। इवन इनफैक्ट माय डॉटर ऑलवेज सेज, मम्मी तुम कभी तो अपने लिए सोचो। मतलब मैं पहले क्या करती थी, कुछ भी अच्छा चीज घर में आया, एक मान लीजिए कोई भी चीज, अच्छा तो ये मेरे बेटी के लिए है, हाँ, बट अभी वो बोलती है कि नहीं, ये तुमको इतना अच्छा लगा, ये चीज खरीदा, ये पहले तुम्हारा है, बाद में हम लोग देखेंगे। तो वो जो चीज है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप के लिए सोचना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली। इनफैक्ट डाइट के बारे में जो बोला, एक्सरसाइजिंग के बारे में जो बोला, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, और कोई चाहे भी वो कोई बीमारी डिजीज हो भी ना, हाँ, उसमें भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल यही रहेगा, जो डाइट एंड एक्सरसाइज सबसे अच्छे से आपको पूरा मेंटेन करना चाहिए। तो मैम, आपकी मतलब पूरी जर्नी में सबसे बेस्ट ऐसी कौन सी चीजें रही जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता रहा अपनी पूरी जर्नी में? पूरी जर्नी में एक तो मेरा हस्बैंड का सपोर्ट हम बोलेंगे, वो दैट वाज कंटिन्यूअस मोटिवेशन। मेरे रिलेटिव्स, मेरे भाई, वो रहता है यूएसए में। यू डोंट बिलीव, एवरी डे वो मेरे को फोन करके बोलता था, तुमको कुछ चिंता नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो मेरे को एवरी डे मोटिवेट करता था। देन हम बोले, एक्चुअली एक नहीं है, बहुत सारा चीज, सब कुछ मिलके ही मोटिवेशन होता है, राइट? फिर दो मोटिवेशन है, डॉक्टर्स मेरे को लाइक एक्चुअली फर्स्ट जब मेरा रिलैप्स हुआ, आई गॉट अ बिट एंग्री टू मतलब द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल की मेरे को क्यों, कैसे रिलैप्स हो गया। बट द डॉक्टर्स नेवर मीन्स एक्सप्रेस्ड कि मेरा जो एगोनी था, उनको दे ऑलवेज टैकल्ड इट सो नाइसली। मेरे को हर बार एक्सप्लेन करते थे
they never lost patience, you know. उन लोगों को कभी खराब नहीं लगा कि मैं बोल रही हूँ कि अपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए मेरा हुआ. They were so compassionate. वो भी एक चीज था कि उनको अच्छा मतलब बिहेवियर मेरे को अच्छा रखा. एंड हम बोलेंगे स्पेशली ये जो हॉस्पिटल है ना, ये हॉस्पिटल के द पीपल आर वेरी कंपैशनेट. देन ऑफ कोर्स हम डिम्पल को अचानक से कनेक्ट किया. ठीक है, कनेक्ट करके मेरा ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, डिम्पल you, I do not know if you can help me, मेरा ये है, वो है, I don't believe how this hospital will be, whether my treatment will be good or not. At that point of time when I was completely confused whether I'll be continuing my treatment here or not, she supported me. She told, okay Dhruva, I will help you, I will try to find out about the issues, I will try to find out, I will help you, who are your doctors, I can guide you. तो करके she helped me. तो ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा कंट्रीब्यूशंस है जो कंट्रीब्यूशन लेके मेरा मोटिवेशन मतलब ऑन रहा. सबका सपोर्ट में मोटिवेशन ऑन था. राइट मैम. तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और केयर गिवर्स को? Caregivers should be very very cheerful. They should be like cheerleader. They should not be like, oh ऐसा हो गया, मेरा अपने को ऐसा हो गया. No, ऐसा नहीं. You should be very happy. वो आपके चारों तरफ एक हैप्पीनेस ऑरा होना चाहिए जो बीमार है, so that she or he feels कि मेरे को कुछ हुआ नहीं है. That is for caregiver. And for the person who is going through, आपका ऊपर नीचे जो भी होता रहता है, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारो, क्योंकि ये डिजीज अभी इतना बड़ा डिजीज नहीं है, इसमें ट्रीटमेंट है. आपको तकलीफ तो होगी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर इनर सेल्फ. वो स्ट्रेंथ आपको रखनी होगी क्योंकि आपको हारना नहीं है. बिल्कुल मैम, ये बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज था. एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको अपनी पूरी जर्नी को एक सिंगल लाइन में बताना हो तो वो क्या होगा? ये पूरी जर्नी मेरे को और हिम्मत वाली बनाती है. जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने. काफी ज्यादा रिलेट करता है ये आपकी पूरी मैं जर्नी स्ट्रॉन्ग से. थी लेकिन मैं अभी स्ट्रॉन्गर हो गई हूँ. मैं अभी राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ. बिल्कुल मैम. यस. तो इसी के साथ मेरे जो क्वेश्चंस थे वो तो सारे आपने आंसर कर दिए हैं, एंड बहुत सारी नॉलेज मिली है, बहुत सारी चीजें पता चली हैं. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट. एंड दीपक जी कुछ डिस्कस करना चाहते थे. दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. नमस्ते दीपक जी. नमस्ते जी. नमस्ते. आपने बताया कि कंसंट्रेट नहीं होता है, आप अपना जो नोस्ट्रिल है उसके ऊपर ध्यान रखिए, और आपका ब्रीदिंग इन एंड आउट जो है ना 9 टाइम्स आप काउंट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सबसे. मींस आप बोल रहे हैं कि हम ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो मेरा कंसंट्रेशन उसी के ऊपर चला जाएगा, तो अदर थिंग्स आई विल सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. मैं मेरी वाइफ को वही कराता हूँ हर एक टाइम. जब हमारा ये जोलोंड्रोनिक का होता है तो मैं उसको वही पहले करा देता हूँ, फिर जोलोंड्रिक एसिड इन्फ्यूजन चालू होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता उसको. अच्छा अच्छा, थैंक यू. हम कोशिश करेंगे. हम कोशिश. आपका ERPR क्या था मैडम? या आपका ERPR है ना HER2? मेरा ERPR नेगेटिव है, HER2 पॉजिटिव है. उल्टी गाड़ी है पूरी. आपको हार्मोन देना भी काम नहीं करेगी, सिर्फ आपको हर्सेप्टिन लेना है. yes. और वो हर्सेप्टिन के बाद में प्रेजेटा करना पड़ेगा अगर ये नहीं सक्सेस हुआ तो. हर्सेप्टिन नहीं, मैं ट्रांसटुजुमैब ली हूँ. इज इट वो हर्सेप्टिन ट्रांसटुजुमैब एक ही है.
उसके बाद में अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो आपको प्रेजेटा करके एक इंजेक्शन है वो लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो काफी कॉस्टली है यार, लेकिन वो भी अभी पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर में आपको फ्री में भी मिल रहा है। अच्छा ओके। और आप एक हमारा ग्रुप है वो भी आप फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन एंड सपोर्ट। प्रिवेंशन, या इतने ब्रेस्ट फॉरेनर्स कैंसर है, प्रिवेंशन एंड सपोर्ट, राइट? या इतने फॉरेन सब मैक्सिमम उसमें फॉरेनर या इंडियन तो मुश्किल से 15-20 है। अब वहां पर देखोगे इतना मोटिवेट हो जाओगे और आप भी मोटिवेट कर सकते हैं। आपकी जो मैं अभी सुना ना, आप खुद में स्ट्रॉन्ग है तब दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं वहां पर। हाँ थैंक ठीक यू। है, आप मेरे को लिंक भेजिएगा, हम ज्वाइन कर जाए। आपका कुछ कांटेक्ट नंबर मेरे को देंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा लिंक। हाँ, आई थिंक शी कैन शेयर माय कांटेक्ट नंबर। ठीक है, मैं आस्था से ले लूंगा। हाँ 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 जी, मैं दी यस हूँ। यस यस। देखो जी। स्माइल आ गया आस्था जी का चेहरे पर एकदम। हाँ, हाँ। इसके लिए चलिए, थैंक यू ओके सो बाय। मच दीपक जी। हाँ जी। दक्ष जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? हाय अंजू जी। हेलो मैम। हेलो हेलो दक्ष जी। हाउ आर यू? हाँ फाइन हाँ फाइन, जी। आई हाउ एम आर यू वेरी मैम? फाइन। मैम मुझे ये पूछना था आपसे, जैसे आप कह रहे हैं कि 2019 में आपका डायग्नोज हुआ और अभी आपका कीमोपोर्ट है, तो ये कितने दिन रहेगा आपका? ये कब मैं केमोपोर्ट जो आपका लगाया हट ना वो रिमूव हो जाएगा? 5 साल रह सकता है, बट अभी मेरा 2 साल हुआ है। तो मैं लगाया 2020 अच्छा। का सितंबर में, तो मेरा अभी 2 साल ओके। हुआ है, बट आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, लाइक डिफिकल्टी ऐसा है कि ये थोड़ा ना पेन करता है, थोड़ा हेवी हो जाता है। और केमोपोर्ट फ्लशिंग मींस दे चेक कि वो बैक फ्लो आ रहा है कि नहीं, दैट मींस वो जो लाइन डायरेक्टली हार्ट में कनेक्ट होती है, मतलब एक आपका पोर्ट से एक कनेक्शन ट्यूब जाती है, आपका जो मेन आर्टरी जी जा रहा है उसी में जाके वो कनेक्ट कर देता है। तो जी उसमें अगर कोई ब्लॉकेज ग्रेजुअली, अभी तो ये रेगुलर यूज में नहीं है ना, और बहुत दिन हो गया, 2 साल हो गया, मतलब मेरा 1 जी साल पहले तो ऑल केमोपोर्ट यूज खत्म हो गया। तो जी 1 साल से मैं क्या कर रही हूँ, हर एक मंथ में फ्लशिंग कर रही हूँ। तो जी। उससे जो प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बहुत चोकिंग हो रहा है वो चीज। तो बैक हम्म। फ्लशिंग बहुत जल्दी नहीं आता है, 10 मिनट तक वेट करना पड़ता है बैक फ्लशिंग के लिए। बैक जी फ्लशिंग इज द साइन कि आपका वो पोर्ट क्लियर हुआ। हाँ, मतलब पोर्ट जी। में पोर्ट क्लियर है बोल के। तो डॉक्टर्स आर टेलिंग मी दैट ये हम्म। पोर्ट शायद अभी भी ज्यादा दिन नहीं रख सकते, लेकिन मेरा तो एक्चुअली दूसरा प्रॉब्लम है। मेरा एक हाथ में थ्रोम्बोसिस था, तो ये हाथ का ना जो भी, मतलब यहाँ से कोई ब्लड बट सैंपल नहीं हो सकता है, ठीक है, राइट हैंड से। और हाँ, लेफ्ट हैंड जी में मेरा सिंस वो दैट क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स कट गया है, तो लेफ्ट हैंड से भी मेरा ब्लड बट कोई सैंपल लेना नहीं पॉसिबल है। तो मैं सोचती हूँ जितना जी दिन ये रहता है केमोपोर्ट अच्छा है, मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाता है, बट अदरवाइज मेरा वेन्स इतना पतला है ना, तो मेरा पैर से या कहीं जगह से ना वो ब्लड नहीं ले पाते हैं। बट इट सीम्स अभी मेरे को ये प्रॉब्लम कर रहा है, जी तो डॉक्टर्स आर आल्सो थिंकिंग ये रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने से मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, एटलीस्ट मेरा हाथ जब तक वापस नहीं आएगा जी। अब नहीं आपके करना है। दोनों हाथ अच्छे से वर्क कर रहे हैं? ये कर पा रहे हो आप अच्छे हाँ से? हाँ, दिस थिंग आई हैव नो प्रॉब्लम, बट मेरा प्रॉब्लम ओके। हुआ केमो से, मेरा हाथ में जो थ्रोम्बोसिस हुआ था उसके बाद जी से ना मेरा हाथ में आपका बहुत हम्म। क्लॉट्स है। तो वो क्लॉट जी जब तक क्लियर नहीं होता है, तो मेरा हाथ से आप ब्लड सैंपल नहीं कलेक्ट कर सकते, वो आता ही जी नहीं जी। है, बहुत पेन हो जाता है और सैंपल नहीं हम्म। आता है। और लेफ्ट हैंड में सिंस आपका मेरा वो नोट्स नहीं है, तो लेफ्ट हैंड से भी ब्लड सैंपल हाँ नहीं ले पाते हैं। जी। तो ये सब चलते हुए आई एम सोच रहे हैं हम, बट आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ रिमूविंग दिस केमोपोर्ट,
तो देखते हैं कीमोपोर्ट और जितना दिन खींच सकते हैं उतना अच्छा है। बट आपको कहाँ लगा कीमोपोर्ट? जैसे आपके तो दोनों यहाँ जस्ट यहाँ लगा। बट कहते सर्जरी के बाद इधर नहीं लग सकता, जैसे अगर आपकी दोनों तरफ सर्जरी हुई है। नो ब्रेस्ट सर्जरी ये तो ऊपर है। ओके ऊपर है, ऊपर के पोर्शन में है, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके हाँ, तो मेरा तो डबल मस्टेक्टोमी हुई है, ये लगने के बाद हुई है। नहीं, आपने ये बहुत ब्रेव डिसीजन लिया ना कि विदाउट एनी रीजन आपने डबल लिया। हाँ, मतलब डॉक्टर्स वर नॉट रेडी। डॉक्टर टोल्ड हम तो करेंगे ही नहीं। हम बोले उस नहीं, टाइम आपको करना होगा। आफ्टर सर्जरी आपको दोनों तरफ ड्रेन है, तो लेटने में काफी मतलब काफी टफ रहा होगा वो टाइम। हाँ, वो बहुत टफ टाइम था। मतलब आपका ही साइड नहीं मुड़ सकते हैं, आपको सीधा होके जिंदगी भर रहना है। वो एक बहुत मतलब पीठ में दर्द हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट फॉर 1-2-4 महीना ना, उसके बाद तो धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हैं, राइट। वो 2-4 महीना इज नथिंग फॉर कंपेयर टू योर लाइफ स्पैन, राइट। वो 6 महीना भी हो, अब आप वो 6 महीना भी हो, दैट इज नथिंग। अब आप विद कीमोपोर्ट और डबल सर्जरी के साथ अपना जैसे वर्क वगैरह कर लेते हैं अच्छे से? कोई भी वर्क है घर पे, हाँ, कुछ है, डॉक्टर्स मेरे एक्टिव को रहते बोलता है आप अपने हस्बैंड को गोदी में मत उठाने की कोशिश करना, बाकी सब करना। अच्छा दिस इज जोक इन लाइटर मोड। बट मतलब लोग सोचते हैं ना कि हम वेट नहीं उठाएंगे। हम तो मतलब मेरा ऑफिस में सारा खाना मैं लेके जाती हूँ, तो मेरा पास 5-6 टिफिन डब्बा रहते हैं। तो मैं 2 बैग में उसको कैरी करती हूँ, क्योंकि एक बैग में मेरे से होता नहीं है, मेरे को मतलब पेन हो जाता है। तो 2 बैग में डिवाइड करके मैं उसको लेके जाती हूँ। तो बहुत लोग मेरे को बोलता है तुम किसी को क्यों नहीं बोलते हो, कोई ऊपर चढ़ा देगा, कोई लेके नीचे चला जाएगा तुम्हारे चीज। मैं बोला हर रोज मैं किसको बोलूं कि मेरा टिफिन डब्बा लेके जाओ और मेरा टिफिन डब्बा लेके आओ। इट्स नॉट पॉसिबल। तो नहीं, आपको मतलब आफ्टर सर्जरी फैमिली में बच्चों ने भी सपोर्ट अच्छे से किया? जैसे बच्चों को कैसा फील हुआ? मेरा एकदम बेटी तो बड़ी है। हाँ, देखिए ये मेरे बच्चे इसके कारण बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो गए हैं। हाँ जी। वो अगर पहले सोचते थे कि मम्मी तो बोल रही है, चलो नहीं सुनने पे भी कहाँ से सुनने से भी चलेगा, लेकिन अभी उन लोग सोचते हैं नहीं मम्मी जब बोली तब कर ही लेते हैं। मेरा इम्पोर्टेंस बढ़ गया घर में। हाँ जी। पहले बच्चे लोग भी सोचते थे वो मम्मी तो बोलती ही रहती है, वो सुनने का नहीं। अभी सोचती है कि नहीं मम्मी जब बोली है, जब बोल रही है तो सुन ही लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ब्रेव डिसीजन लिया, और आपकी जो जर्नी भी काफी अच्छी मतलब इंस्पिरेशन वाली है, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सबका जर्नी इंस्पिरेशन है, पता है ना, सबका जर्नी एक स्टोरी है। हम लोगों के ये ज़ेन अंकों में आप देखेंगे जितने हैं, सबका जर्नी एक एक स्टोरी है। एवरीबॉडी हैज प्रूवन themselves strong and they have come out with good result। तो ये अच्छा है, ये शेयर करते हैं। हम तो रिलीजियसली सुनते थे जब मतलब when I was going through this journey, no, that gave me a lot of support। मैं हर एक का सुन के I used to console myself। हाँ, ये तो होता ही रहता है, सबके साथ होता रहता है, इसमें there is nothing new। You have to be actually aware कि ऐसा होता है। You have to read also कुछ मेयो क्लिनिक, कुछ अच्छा साइट है, अच्छा हॉस्पिटल का, जिन लोगों का कुछ गाइडेंस है। हाँ, आप वो पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा इसमें इट इज कॉमन टू एवरीबॉडी। ये जो आपको इचिंग हो रही है, आपको डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर मेरे को इचिंग हो रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हम क्या करें, हम मर जाएंगे, नहीं। आपको जो नर्व पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आप पढ़िए ना, आपको पता चलेगा क्यों हो रहा है। इट्स शायद 1-2 साल तक रहेगा भी। मेरे डॉक्टर तो क्लियरली मेरे को बोल दिया वो आपका शायद कभी ना भी जाए, तो भी ऐसा भी हो सकता है कभी भी वो नर्व पेन जाएगा ही नहीं।
तो क्या है, आपको तो आगे बढ़ना ही है, चलना ही है, आपको भूल जाना है कि आपको कुछ है। हाँ जी। अच्छा मैम, कोई ऐसी पर्टिकुलर डाइट जो आप बताना चाहेंगे कि जो हमें रेगुलर मेंटेन करनी ही चाहिए? डाइट में हम जो चीज करते हैं, मतलब मेरे मन से जो चीज लगा है, आई हैव लेफ्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। Okay. अच्छा, it was suggested by Zenonco also. It was Okay. suggested by doctors that milk and milk products तो बिल्कुल नहीं लेना है, वो हम नहीं लेते हैं। हाँ, जी। then आपको nuts and morning का diet में हम लेते हैं, it is suggested by them only, Zenonco doctors only, oats लेते हैं, and that also steel rolled oats. So बाजार का वो दूसरा oats नहीं है, ये स्टील का ओट्स है, आपको रात में भिगो के रखना है। जितना आप नेचुरल फूड लेंगे ना, उतना अच्छा है। आप व्हीट छोड़ के अगर बाजरा का रोटी खाएंगे ना, तो दैट इज बेटर। अगर आप ज्वार का रोटी खाएंगे ना, वो बनाने में दिक्कत है। आप उसके साथ थोड़ा सा भी अगर लगता है आपको कि आपको नहीं रोटी बना पा रहे, उसके साथ थोड़ा सा आटा दे दीजिए, बट बहुत थोड़ा, ठीक है। देखिए, उसको आटा गिव्स दैट elasticity and it is having gluten, that's why। हाँ, तो थोड़ा सा डाल के उसको थोड़ा बनाने की लायक बना लीजिए। लेकिन अब जितना रॉ आप मीन्स केमो चलते हुए नहीं, केमो के टाइम में तो आप मतलब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डाइट लेना है, बट बाद में भी दिस बाजरा, ज्वार, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड, यू नो। मतलब रॉ जितना आप मतलब हमारे छोटे के टाइम में हम लोग जो खाते थे ना, और मतलब जो करते थे, वो लाइफस्टाइल पे अगर हम चले जाएंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको कुछ चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड हमने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। मैं एक ग्लास भी कोको कोला या तो मिरिंडा नहीं पीती हूँ, नहीं पीती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। मैं मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेती हूँ। फ्राइड चीज बहुत कम। और तेल में मैं चेंज कर लिया, तेल को मैं वो आई डू नॉट नो, मतलब ये तो बहुत चीज मैं चेंज किया मेरे डाइट में। मतलब दैट इज इट इज व्हिच ऑयल आई यूज, आई एम फॉरगेटिंग इट, दैट इज आई थिंक यू कैन सजेस्ट, it is cold pressed oil. Press oil. I was just forgetting the cold name. press, yes, it's cold pressed oil। हाँ, तो ऐसा बहुत सारा मैंने मेरे घर में अभी all complete diet habit is changed now। बाहर से पिज्जा पास्ता वो सब चीज आप बंद कर दीजिए, वो सब खाने का ही नहीं। वो सब चीज, वो मेयोनीज, वो चीज, बटर, आपको खाना है तो घी खाइए, अच्छा घी, A2 मिल्क का घी जी, A2 मिल्क का घी खाइए। मतलब जो गाय को हार्मोन नहीं दिया गया, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो गाय में हार्मोन नहीं है, जो चिकन मटन में हार्मोन नहीं है, जो फिश में हार्मोन नहीं, आजकल तो एवरीथिंग इज एडल्टरेटेड। ओके, इवन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको बहुत अच्छे से धो के उसके ऊपर आपको कम ही आपका ऐसा हो सकता है कि जिसमें कोई पेस्टिसाइड ना मारा हो, ना दिया हो, तो उसको अच्छे से पानी में भिगो के रख के पीना है। देन ऐसा चीज, मतलब हम लोगों का क्या हुआ ना, आफ्टर 90s आई थिंक लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया फॉर ऑल पीपल। वी हैव आवर राइस, our products, our diet, our food, everything has changed, a drastic change in means agriculture, and that has given some impact on health, and to some extent I feel it has given a great impact on our health. You see, the person who is not exposed to pollution, still they are having lung cancer, so these things are means where from all these things are coming, it's a matter of research, and I don't think they have yet come to a conclusion कि इस कारण ये कैंसर होता है, इसके कारण ये कैंसर होता है, ऐसे अभी तक नहीं कर पाया। other than in their means research, उन लोगों ने जो किया है, that is wide range of treatment, medicines बहुत आया है, मतलब आपका combat करने के लिए
आपके पास अभी बहुत अस्त्र शस्त्र है, बट जी। किस लिए हुआ है वो चीज तो पिन पॉइंट करके अभी भी रिसर्च में नहीं निकला है। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई टॉक टू मच। यू मैम। नो नो ऐसा नहीं, आप अच्छे से सबको पूरा गाइड करते हो, दैट इज रियली वेरी नाइस। काफी वी जस्ट हैव 2 मोर पीपल जिनको डिस्कस करना है आपके साथ, सो कैन वी डिस्कस? हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। हिताक्षी जी हैं, हिताक्षी जी को भी कुछ डिस्कस करना है। हिताक्षी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू मैम। अभी तक जो भी मुझे पूछना था मैम ने पूछ लिया है। ऐसे देखा जाए तो वो मुझे चाहिए था पैरेलल, वो जो है ना जेन का जो आयुर्वेदिक और एनीथिंग, वो आपने उपयोग किया है या वो मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं भी अभी मल्टीपल माइलोमा के कीमो में रही हूँ। अभी आज कीमो लेकर आ रही हूँ। मुझे चाहिए फूड अथवा इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आपने कोई और जो क्या है ना पैरेलल जो जेन जो कहते हैं ना वो मेडिसिन लिया है, वो मुझे चाहिए था मैम। आपने लिया है क्या? अच्छा, एलोपैथी को छोड़कर मैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए अदर देन मेरा जो डाइट्स मैं सजेशन लिया है जेनॉन डॉक्टर से, मैं डाइट का चार्ट लिया है। अदर देन दैट मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। अच्छा अच्छा, कोई जो आपने मेडिसिन कहा नहीं लिया मैंने जो नॉनवेज फ्राइड ये पहले से छोड़ दिया था। ये तो 4 महीने हो गए मुझे वो डायग्नोस होकर। वो उससे पहले से मैं फ्राइड नहीं खाती हूँ। जो भी है ना वो पिज्जा ये सब कुछ बिल्कुल नहीं खाती हूँ। आपने जो कहा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दैट ओनली आई यूज्ड टू यूज। जो भी है मेरा लाइफस्टाइल ऐसे ही है। मेडिटेशन जो कह रही कि ये सब कुछ कर रही थी, तो आपसे कुछ जो इंस्पिरेशन मिला है कि शुड बी ए पॉजिटिव, बट आई वाज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। व्हेन आई डायग्नोज ना मैंने इतना डिप्रेस्ड हो चुकी थी। 2.5 months आई नेवर यूज्ड टू स्पीक टू एनीवन, आई नेवर यूज्ड टू यूज एनी सोशल मीडिया, नथिंग। तो मेरे जो कलीग्स है ना बात तक नहीं करती थी, रिक्वेस्ट कर लिया मुझसे बात मत करो, क्योंकि मेरा जो मेलोमा है ना वो हेड में भी वो सेल्स होते हैं ना। आई एम वेरी सेंसिटिव टू क्या कहते हैं ना साउंड। तो मुझे साउंड से होता ही नहीं, इसलिए मैं 4 महीने हो अभी तक स्कूल नहीं जाए। मैं टीच करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बोलते हैं ना मुझे नहीं होता है, वो सुनना नहीं होता है मुझसे, इसलिए मैं नहीं क्या है ना वो जा नहीं पा रही हूँ। अभी तो मुझे 6 कीमोस बता दिया, ये 5th में चल रहा है, और वो एक और उसके बाद स्टेम सेल वो कर दिया है। मे बी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आई मे गो फॉर दैट। इतना तो मैं तो केयर ले रही थी, फिर भी मुझे आ गया। अभी मुझे वही है ये क्या है ना इम्यूनिटी WBC बहुत कम है, इसलिए मुझे वो चाहिए था जेन से जो है ना पैरेलल मेडिसिन लेने से होता या नहीं, वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो वो लेने से होता है या नहीं। ऐसे तो ये फूड तो मैं कंट्रोल करती हूँ, स्वीट बिल्कुल नहीं लेती हूँ मैं। ये जब से मुझे पता चला ना आई डोंट ईट एनी स्वीट, स्पेशली शुगर एंड इवन जैगरी ऑल्सो। ये कुछ भी नहीं है मुझे, वॉमिट आता है वो जो खाने से, टेस्ट नहीं होता है, फिर भी नहीं लेती थी मैं। जैसे गंजी, वो तो हमारे यहाँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, हमारे यहाँ जो क्या है ना गंजी वो कह रहे हैं ना उसके साथ जो बटर मिल्क वो सब कुछ डालकर वही खा लेती थी, पी लेती थी, और थोड़ा सा पिकल का एक टुकड़ा ऐसे कुछ करके। इसलिए मुझे, मैं खाती बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा वो क्या है ना नहीं। अभी केमो में आपको खाना कम खाने से तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको वो बहुत तो हो खाना नहीं पड़ेगा। वही केमो में हो रहा है, आपको क्योंकि मैं पहले से जबरदस्ती बहुत आपको ठूसना पड़ेगा। हाँ मतलब क्या हाँ है ना, आपको जो अच्छा लगता है आप वैसा करके आप, बट खाना थोड़ा टेस्टी भी होना चाहिए, मैं मानती हूँ। बट मुझे केमो के कुछ टाइम में आपको केयरफुल रहना है, आपको प्रोटीन इनटेक बहुत होना चाहिए, नहीं तो आप तो मुझे वीक क्या पड़ जाएंगे। वो जो टेस्टी बनाने जाते हैं ना कुछ, जो भी वो मसाला पहले जो डालकर खाते थे, वो अभी मुझे कड़वा लगता है। हाँ, आई अभी कैन नहीं नॉट ईट। पसंद आएगा। केमो के हाँ, टाइम में मसाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं बिल्कुल भी लगता नहीं है अच्छा लगता है। हाँ, मैं तो केमो के मिर्ची टाइम वाला में तो कितना दिन मैं सिर्फ चावल में ना घी डालती थी, घी डालती थी और एक मिर्ची लेती थी, वो मिर्ची पूरा पीस देती थी। तो हाँ फिर लेमन केमो में का और पीस एक है, प्रॉब्लम होता है, आप मिर्ची नहीं खा सकते ना, आपका जीभ पूरा खराब हो बॉयल्स आ जाता है, जाता है, आपका टांग में बहुत जलन बॉयल्स, होती है। बॉयल्स है, बॉयल्स होता हाँ, है या बॉयल्स आ जाते हैं। तो लेकिन वो मेरा सब तो
यस मैम, मेरा तो क्या है ना वो थोड़ा सा जो कीमो होना एज कम्पेयर टू अदर्स मेरा तो माइल्ड है, और मेरे जो एज है ना उसके अनुसार डॉक्टर ने बता दिया, मेरे डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर ने बता दिया आपके एज के लिए हम हाई डोज नहीं दे सकते हैं, इसलिए मुझे इतना ये नहीं होता है, लेकिन बाद में है ना वो फूड नहीं खा सकती हूँ, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है, और ये बाद में उस दिन कुछ नहीं होता, नेक्स्ट डे कुछ नहीं होता, थर्ड डे स्टार्ट ऑल द प्रॉब्लम। 3-4 दिन के बाद ही इम्पैक्ट होता है, क्योंकि WBC और अपने आप जैसे कम आपका होता है। कितना फ्रीक्वेंसी में आप केमो लेते हैं? क्या हफ्ते में एक मैम, एक्चुअली एक साइकिल में है ना, एवरी सैटरडे आई टेक, एंड इन बिटवीन वन वो सैटरडे छोड़ देते हैं, फिर शुरू कर देते हैं ऐसे। अच्छा अभी अच्छा। तो 5th का 2nd हो गया आज, और नेक्स्ट सैटरडे 3rd होगा, उसके बाद एक हफ्ता छोड़ देते हैं, उसके बाद 3 हाँ। कंटिन्यूअस। आपका लास्ट केमो कब है? Last chemo maybe in the month of December 1st week, I think. Afterwards, I'll go for stem cell transplant. ओके ओके। वो मुझे केमो कैसे का ही पता टाइम में है ना कि थोड़ा प्रॉब्लम्स तो सबको रहता है, एवरीबॉडी सफर्स ड्यूरिंग केमो, यू नो। मुझे तो अभी immunity इसमें develop कोई करना ऐसे है। नहीं बोल सकता है कि मेरा केमो बहुत खुश खुश चला गया, नो। बट Yeah. हाँ, नहीं होता है, केमो के टाइम बहुत स्ट्रगलिंग रहता है, बट आप हाँ, या इतना खुश रहिए कि दिसंबर के बाद आपको और केमो लेना नहीं है, दिसंबर 1st वीक के नहीं बाद। नहीं तो आपका ये जो अभी जो फेज जा रहा है, आपको खाना खाने का मन नहीं है बट खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपका क्या वेट लॉस हुआ है? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है ना, मुझे तो इतना आश्चर्य लगता है, जब डायग्नोस हुआ तब एक्चुअली आई वाज लिटिल मोर वेट आई हैड, तब भी मुझे कोई भी फीवर, कोई भी सिम्टम्स, बट पेन वाज देयर इन माय चेस्ट, क्योंकि बोन मैरो है ना, वो तो जहाँ बोन होता है ना, यहाँ से वो चेस्ट में हो रहा था, वो इट वाज मूवमेंट मूविंग हियर एंड देयर। तो डॉक्टर के पास, कितने डॉक्टर के पास गई पहले से ही, मुझे इसके पहले ये डॉक्टर को डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, अंत में जो ब्लड टेस्ट हो गया, तो उसी वक्त डॉक्टर ने शुरू कर दिया ये कीमो, उसके बाद हो रहा है अभी। तो पेन तो बहुत कंपैरेटिवली बहुत कुछ कम है, 4th में ही मुझे करना था स्टेम सेल का, क्योंकि वो प्रोटीन हाइक है ना, वो जो थोड़ा सा 0.2 है, डॉक्टर ही एक्सपेक्टेड 0, इसलिए 4th कीमो में नहीं हुआ, इसलिए दो और करना पड़ा, नहीं तो अभी तो मैं स्टेम सेल में होती, नहीं हुआ, वो तो थोड़ा सा ये है, नहीं तो वो 0 होना है, 0.2 है, पहले तो 3.47 था जब मैं एडमिट हुई थी, अभी तो changes are there in my this one graph is actually is good, लेकिन क्या करे, अभी 0.2 है, डॉक्टर एक्सपेक्टिंग दैट शुड बी 0, वो हो तो जाएगा। मुझे हाँ, डॉक्टर्स आपके आज WBC मैं वही बोल रही हूँ ना, मिड कैंसर रिसर्च में एक चीज तो बहुत हुआ है, दैट्स मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, इवन ये जो हार्ट टू पॉजिटिव मेरा है ना, दैट्स अ पैरामीटर, ओके, दैट शोज कि देयर कैन बी चांसेस ऑफ रिलैप्स, ओके। बट इसका भी ट्रीटमेंट आई थिंक फॉर लास्ट 15 years इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके पहले नहीं था। हाँ, तो ये जो डेवलपमेंट्स है मेडिकल रिसर्च में, उसके लिए अभी आपको मतलब इतना मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर्स आर द बेस्ट जज, वो फेथ आपको रखना है, एंड डॉक्टर जो कर रहे हैं ना, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसके बाद जो भी कर रहे हैं, दैट्स बेस्ट फॉर यू। आपका ट्रीटमेंट के साथ आप किसी और का ट्रीटमेंट का कंपैरिजन मत कीजिए। एवरीबॉडी, हर एक का ट्रीटमेंट अलग होता है, हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट फेज इज डिफरेंट एंड ट्रीटमेंट इज डिफरेंटली डिसाइडेड, ओके। तो आपको आई थिंक ये जो केमो का प्रॉब्लम है, ये सबका प्रॉब्लम है, एवरीबॉडी फेसेस दिस प्रॉब्लम ड्यूरिंग केमो, बट वो केमो चला जाएगा, आपका प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, आप मतलब खुश रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Actually, plus point is that my chemo is very lightly, it's not so strong. I don't have any hair fall. ये तो है, no problem in that. But सब केमो में हेयर फॉल नहीं होता है, वो नहीं, डॉक्टर ने पहले बताया हेयर फॉल नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। yes. और एक अभी तो है ना, स्टेम सेल जो होता है ना, वो तब तो हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कीमो विल बी गिवन, तब तो मुझे नहीं पता,
क्या होता है, क्योंकि वो एक 20-25 days इन हॉस्पिटल, आई डोंट नो बिकॉज बिफोर ना, तो अभी तक मुझे कितना नॉलेज है, ये प्रीवियस नॉलेज, व्हेन आई गॉट डायग्नोस्ड आई स्टॉप गूगल में नहीं जाती हूँ, देखती नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है. That's also one I method don't see doctors my report. say. I don't see my report at all. My daughter is looking after everything. My one thing is the positive point. My daughter, she will be my everything. She does Actually, everything. that is your lifeline, you know. हम लोगों को क्या है ना, हम लोग, मैं बोला ना कि मेरा जब वो हो रहा था ये केमोपोर्ट इंसर्शन, तो मैं वही सोच रही थी, मेरे को पेन तो हो रहा था क्योंकि एनेस्थेसिया वाज नॉट वेरी स्ट्रांग, और वो जो इम्प्लांट कर रहे थे तो मेरा आंख से इधर से पानी निकल रहा था, बट आई वाज थिंकिंग कि आई वांट टू सी माय डॉटर्स, आई डोंट वांट टू लीव देम. तो मेरे को इसको कैसे भी हो इसको झेल के निकल जाना है इससे. तो दैट गिव्स यू अ पॉजिटिव, यू नो, कि आपको इसमें से निकलना ही है. ये ट्रीटमेंट के थ्रू आपको निकलना ही है. But actually, as you are so strong ना, I was not in that way. But अभी तो थोड़ा सा हो पा रहा है ना, इसलिए now I am रहना strong. है, आपको स्ट्रांग रहना है. आप नहीं स्ट्रांग रहेंगे तो आपका जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगी? What she will do? आप वही सोचिए ना, बच्चे लोग क्या है ना, बच्चे लोगों का हम लोग पिलर है. हाँ, बच्चे लोग हम लोगों के क्या मानते हैं, हमारे ऊपर का जनरेशन को हम अपना पिलर मानते हैं. हाँ, हमको बच्चे लोग समझते हैं कि मेरे फैमिली के पिलर है, जब तक उन लोग हैं हम निश्चिंत है. तो वो अगर पिलर में थोड़ा सा भी कुछ भी ये हो जाए ना, थोड़ा सा भी थोड़ा ब्रेकेज आ जाए, तो दे कैनॉट रिमेन दैट स्ट्रांग. आपका बच्ची को स्ट्रांग रखने के लिए ही आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा. Yes. I have only one daughter. She's a software engineer. So now it's a blessed means she's work from home ना, वो बैंगलोर नहीं, बैंगलोर में है, तो ये एक positive point है. That's all. But now they are calling back, it seems. I'm worrying about that. Today I came to know. So okay, you are actually inspired us for to being वो क्या धैर्य के साथ किस प्रकार से रहना है. तो आपका तो thank you so much मैम. तो क्या है no, इसमें थैंक्स देने की कोई बात नहीं है. हम भी सब जो इसके मतलब हाँ, आज जो हम बोल रहे हैं ना, ये सब मेरा वो 3 साल का कुछ झेला, मैं भी झेला है. दिस इज इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन जो चीज मेरे को हेल्प की है. और एक चीज, छोटा सा चीज हम बताएंगे आपको. आपका जो पैशन है, आपका जो हॉबी है, उसको आप इस टाइम में नर्चर करिए. दैट विल गिव यू लॉट ऑफ रिलीफ, यू नो. yes. आपको जो चीज मतलब आपको जो चीज शादी होने के बाद जो चीज छूट गया है पीछे, इतना काम में, मतलब फैमिली का सब कुछ देखभाल करते करते जो चीज आपका छूट गया था ना, वो चीज आप फिर से नर्चर करिए. इसी टाइम में अपने आपको बिजी रखिए, तो दैट विल हेल्प यू. But I had problem with my this one. I couldn't watch any social media because वो तो क्या है ना, वो सिर में भी सेल्स होते हैं ना. I had very आप नहीं देखिए, आप मोबाइल को देखिए ही नहीं, देख नहीं पाती थी, वो लिख नहीं पाती थी. I couldn't lift my head. भी मोबाइल देखना कुछ अच्छा चीज नहीं है, उसमें से भी रेडिएशन कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, आई बिलीव. हाँ, इसलिए मैं अभी भी मैं स्पीकर से बोल रही थी, कुछ भी नहीं डालती हूँ, ये कि कान को कुछ नहीं डालती. कान में जो क्या ना, मैंने कहा सेंसिटिव टू द साउंड, तो इसलिए ये सब कुछ देना पड़ा. इसलिए आई डिड नॉट गो टू वर्क. All these things are happening during your treatment, right? Once you are treated and your treatment is finished, you will be all right. Keep that faith, okay? Yes, thank you very much ma'am. Thank you. जी हिताक्षी जी, एक चीज मैं भी, आपने जो अभी पूछा डाइट रिलेटेड, जो अभी मैम ने भी बताया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना नेचुरल वे हो सके, जितना नेचुरली आप इन सब इम्यूनिटी बूस्ट कर सको, ठीक है, अपने साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सको, इतना अच्छा होता है.
तो Thank you. नेचुरल सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, तो उसके लिए मैं हमारा नंबर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एंड जैसे कि ध्रुवा जी ने भी बताया है कि हमारे जो ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो पूरा पर्सनलाइज्ड आपको डाइट प्लान के साथ साथ जितने भी जो नेचुरल चीजें होती हैं, आपने सुना ही होगा करक्यूमिन होता है, रेशी मशरूम, बहुत चीजें होती हैं जिनसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इनफैक्ट जो आपके नॉर्मल फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो उसी सब के लिए मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आपको जो भी क्वेरीज है ना अपनी डाइट रिलेटेड, और भी जो क्वेरीज हैं आप इस पे पूछ सकती हैं जी। और मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी जिसके जो भी डाउट्स हैं, वेदर जो डाइट रिलेटेड डाउट्स हैं या नॉर्मल हैं, वो इस पे पूछ सकते हैं जी। एंड इनफैक्ट अब हम लोगों ने अपना जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप भी लॉन्च किया है। उस पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछेंगे, आपको 1 आवर के अंदर ही एक्सपर्ट से आंसर्स मिलेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप उस पे भी पूछ सकते हैं। आप जरूर उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसमें कम्युनिटी आपको रोज आपको पूरे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सब मिलेंगे। एंड मैं ऐप की लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूंगी, एंड आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अ कैंसर कंपेनियन टू एवरीवन। Okay. Yeah, and we have one more. Yeah, शीतल जी भी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। शीतल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Yes, hi ma'am. हाँ शीतल जी नमस्ते। फर्स्ट ऑफ मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतना ये इससे बाहर आ गए। तो हम भी इस दौर से गुजर रहे हैं अभी। मेरे मम्मी बाहर रहना है, बाहर आया कि नहीं आया, बाहर रहना है। हाँ वही मतलब मेरे मम्मी को अभी कुछ दिन पहले डायग्नोस हुआ, तो सभी के लिए शॉकिंग ही रहता है। मतलब कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था सब, और फर्स्ट इंस्टेंस इज शॉकिंग, बहुत ज्यादा। मतलब हम तो जैसे थे ही नहीं इस मतलब कंडीशन में ही नहीं थे कुछ नहीं भी। आपको जस्ट पहले फर्स्ट लगेगा कि मैंने क्या गुनाह किया था हाँ कि जी, मेरे मतलब साथ ऐसा हुआ। हाँ this will be the first means thought in everybody's mind. मैं तो इतना तक, मैं बोला ना, मैं इतना तक भी सोची कि मैं उसको खराब से बोला था, इसके लिए भगवान ने मेरे को ये किया क्या। मतलब ये सब छोटा मोटा चीज भी आपको लगेगा कि शायद उसके लिए ही हुआ है आपको। हाँ नहीं मतलब मेरी मम्मी को बट यू हैव टू एक्सेप्ट, ये तो कितने लोगों के साथ हो रहा है आजकल ना। तो मैंने मतलब हम 3 है, मतलब 2 मतलब डॉटर है और एक मतलब ब्रदर है मेरा। तो हम मम्मी को संभाल रहे हैं। पहले ही मम्मी इतना स्ट्रांग है हमारी कि वो पहले ही उसने पॉजिटिव ले लिया कि चलो ठीक है, अभी हो गया तो नेक्स्ट क्या है, कैसे करना है वगैरह। यस हाँ, तो अभी चल रहा है उसका ट्रीटमेंट अभी। आपको उनका वो स्ट्रेंथ बना के रखना है। जी हम मतलब सब उसको पॉजिटिव वाइब्स देते, पहले ही वो है। फिर भी अभी कभी लगता है उसको कुछ एक्सप्रेस करना है तो हम मतलब तुरंत अवेलेबल होते हैं, और मतलब बहुत सारा उसको सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव। उसका एटीट्यूड बहुत मतलब अभी वो इतना स्ट्रांग हो गई है कि उसका केमो पॉड अभी फिट हुआ है, और वह मतलब आज उसका केमो हो गया है पहला। तो वही हाँ, तो हमको कुछ भी नहीं पता, हम गूगल से सर्च आर्टिकल पढ़ के मतलब सब इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, कैसे करना है अभी। आपको जो भी क्वेश्चंस हो ना, आप लिखते रहिए पूरा हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर। जिस दिन डॉक्टर के पास जाएंगे ना, हम तो वो क्वेश्चन पन्ना लेके चले जाते थे। डॉक्टर को एक एक करके पूछते थे। अच्छा है, डॉक्टर्स नेवर मतलब मेरे से कभी गुस्सा नहीं होते थे। हम उन लोग मेरे को जिस दिन मैं कुछ भी नहीं पूछा, उन लोग पूछते थे आज आपका कुछ क्वेश्चन नहीं है। मैं बोलती थी नहीं, आज कुछ क्वेश्चन नहीं है। मतलब मेरा मतलब हैबिट ही बन गया था, 1 2 3 4 5 पूरा हफ्ता 2 हफ्ता में जितना मेरा प्रॉब्लम हुआ सब लिखते रखने का, क्योंकि भूल जाएंगे ना, अदरवाइज नोबडी कैन रिमेम्बर इतना माइन्यूटली कि ये क्यों कर। जब जो दिमाग में आती है वो लिखते जाइए। डॉक्टर को जाके पूछ लीजिए पूरा 1 से लेके 10 तक। हाँ वही हम कंफ्यूज हो गए कि मतलब डॉक्टर को क्या क्या पूछना, फिर वो गुस्सा तो नहीं होंगे वगैरह वगैरह, मतलब नहीं कितना होंगे, वो करेंगे, नहीं होंगे। जनरली आई हैव सीन इस प्रोफेशन में डॉक्टर्स को भी पेशेंस रखना जरूरी है, और वो रखते भी है। हाँ। तो मैम बस मेरा एक ही सवाल है। तो समझो अभी मम्मी को कल मतलब हम घर लाने वाले हैं, तो वो बोलते हैं ना कि मतलब हाथ वगैरह धोना है,
मतलब कैसे मैनेज करना है सब बातों को, मतलब नहीं, मैं समझी नहीं, फिर से बोलिए। हाँ, मतलब कैसे, मतलब प्रिकॉशंस लेने हैं, मतलब अगर कैंसर अच्छा, पेशेंट इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन से, हाँ, कैसे इन्फेक्शन से, प्रिकॉशन लेना है? हाँ, इन्फेक्शन है। एक तो है आपका वॉशरूम, हाँ, वॉशरूम, आपके मम्मी का वॉशरूम यूज करने के बाद 2 टाइम्स उसमें फ्लश करना है। जी। These are very कॉमन थिंग्स, ये डॉक्टर्स भी बता देते हैं। देन आपका मम्मी का बर्तन वगैरह वो सब सेपरेट होना चाहिए। मतलब हम जो फॉलो किए थे हम वही बता रहे हैं। हाँ, वही, हाँ, मेरा प्लेट्स, मेरा ग्लास, मेरा कटोरी, हाँ all जी, these things were separate, okay? क्योंकि हाँ, when I am undergoing this chemotherapy, no, so everywhere this medicine is with me, okay? हाँ, हाँ, And हाँ, it is a killer, like cell killer, okay? हाँ, तो इससे थोड़ा मतलब बाकी सबका कंटामिनेशन ना हो वो थोड़ा ध्यान रखना है, हाँ? हाँ, अच्छा, बाकी हाँ, मतलब बर्तन वगैरह थोड़ा ये अलग से रखना है। एंड आपको टॉयलेट फ्लश 2 बार 3 बार करना है। अगर अलग टॉयलेट आपके पास हो, दैट जी, जी, फैसिलिटी हो, तो टॉयलेट वॉशरूम अलग ही कर देना अच्छा है। देन इसके लिए ये उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। एंड देन उनको बहुत साफ सुथरा रखना है। मतलब देखिए, WBC फॉल कर जाएगा ना, तो हाँ, आप अगर मतलब क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर स्प्रे करके भी सोएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, आपको फीवर आने वाला ही होगा, इन्फेक्शन पकड़ने वाला ही होगा। हाँ, वही, WBC इज द मेजर थिंग। तो हाँ, हम डॉक्टर्स को पूछते थे, हम तो इतना कुछ करते हैं फिर भी मेरे को क्यों इन्फेक्शन हो जाता है? जी, डॉक्टर जी, बोलते हैं वो आपका घर से कुछ नहीं प्रॉब्लम है, हाँ, हाँ, प्रॉब्लम हाँ, है आपका बिकॉज ऑफ दैट केमोथेरेपी योर WBC इज फॉलिंग, यस, and यस, WBC is protecting you and fighting against your germs. तो हाँ, अगर WBC ही फॉल कर गया तो आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि यू कैन फाइट, तो यस, इसके लिए आपको इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, तो हाँ, बट क्या है, कोई भी पेशेंट के लिए आपको क्लीनलीनेस इज मस्ट। उनका हाथ धोना, आप जब खाना देंगे आपका हाथ धो के देना, कि ऐसे वैसे ही फालतू का इन्फेक्शन ना हो जाए, राइट? हाँ, अच्छा, 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 उनको ऐसे ही तो उनको खुद से मतलब हेल्थ में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है ब्लड पैरामीटर्स में, तो बाहर से भी कुछ ना हो जाए इसके लिए, जैसे थिक स्किन का फ्रूट खाने के लिए बोलते हैं। हाँ, हाँ, फ्रूट में केला इज गुड, अनार इज गुड, बट ओके, बहुत पतला स्किन वाला अगर आप देना चाहते हो एप्पल, तो एप्पल का छिलका निकाल दो। ओके, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस ये सब में ना हो, मतलब अलग से बाहर से कुछ इन्फेक्शन आपको मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। जी, 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 अच्छा, ऐसा मतलब छोटा कपड़े, मोटा प्रिकॉशंस। बोलिए। हाँ, कपड़े वगैरह भी मतलब सेपरेटली धोना वगैरह वैसा कुछ भी है, मतलब करना? सेपरेटली तो हम धोते नहीं थे, बट धोने के बाद मशीन में एक बार पूरा कपड़ा धो जाने के बाद एक बार डेटॉल डाल के एक चला देते थे। जी, मतलब जी, लास्ट साइड जब लास्ट आ जाता था तो आप एक बार डेटॉल डाल देते थे, हाँ, अच्छा, पूरा अच्छा, लास्ट 4-5 मिनट्स तो डेटॉल में घूमता था। अच्छा, और बट एक हाँ, मतलब एक रूम में रह सकते हैं ना, क्योंकि हमारा मतलब इतना बड़ा भी घर नहीं है, तो पापा और ब्रदर और मदर ऐसे एक रूम में रह सकते हैं ना, मतलब, या फिर क्या इन्फेक्शन हो, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इन्फेक्शन का लेकिन ख्याल रखना? मम्मी का आपका ध्यान है कि अगर किसी को बुखार हुआ, किसी को कुछ दूसरा इन्फेक्शन हुआ, कोई बहुत काफ हो रहा है, हाँ जी, जी, किसी को ऐसा छोटा मोटा बीमारी में अगर कोई बीमार है, तो हाँ, थोड़ा नहीं मतलब रहे, हाँ, मम्मी के हाँ, साथ पास जाके कोई किसी को मतलब कुछ ये करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। जी, 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 बस वही वही मैम, थैंक यू सो मच, हाँ, हाँ, थैंक यू। जी, 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 जी शीतल जी, मैं भी आपको यही बोलना चाहूंगी, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, चाहे वो कितनी बार आपको पूछनी हो, आपको बेझिझक पूछ लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से। हाँ, वही उसी हम के लिए थोड़ा मैं ऐप लिंक टेंशन थे कि पूछे नहीं पूछे, मतलब थोड़ा स्ट्रेस में थे, तो अभी आपसे जी पता चला कि हाँ पूछ सकते हैं, तो वी कैन आस्क। दिस इज जी वन थिंग, मैं तो एक मतलब एक पेशेंट के जरिया से बता रही हूँ, हाँ बट जी, जेनॉन को कैन गाइड यू, कैन सजेस्ट यू द करेक्ट थिंग, ओके? जी, तो जी, हम जो बोल रहे हैं मतलब वो हमेशा इट इज फ्रॉम एनी डॉक्टर और डॉक्टर्स को ओपिनियन है ऐसा नहीं है, कुछ हम्म, मेरा भी अपना है।
तो आपको अगर ज्यादा मतलब साइंटिफिक ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए नो, तो यू डायरेक्टली टॉक टू देम। मतलब आप कुछ ये मत रखिए, आप बेझिझक उनको पूछते जाइए, क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस। दे आर वेरी सपोर्टिव, they will support you in all ways. Okay ma'am, okay, thank you ma'am, thank you so much. जी शीतल जी, जैसे ध्रुवा ने बताया कि आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो पूछ लेना चाहिए। हाँ, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है शायद उतना अच्छा नहीं रहा हो, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर्स अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड कोई आंसर कर पाता है, कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। बट एज ए पेशेंट, एज ए केयर गिवर, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सारे डाउट्स, कंसर्न्स, क्वेरीज आंसर हो जाए, क्योंकि उससे हमारा कन्विक्शन ट्रीटमेंट में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है हम क्या चीज ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसके अंदर बिलीफ भी हमारा बढ़ जाता है, राइट। तो हाँ, तो जैसे ध्रुवा ने बताया कि मैं जेनोन को से ही हूँ, तो आपको हम एक्सपर्ट से कनेक्ट भी करवा सकते हैं, जो कि आपके कितने भी क्वेश्चन क्यों ना हो, बहुत ही शांति से आराम से आपको उसका आंसर करेंगे। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। और ये जो नंबर है मैं वापस बोल देती हूँ, चैट में भी लिखा हुआ है 9। मैंने ले लिया, तो आप उस पर व्हाट्सएप भी कर लीजिए, और आपको फिर जो भी एक्सपर्ट चाहिए, चाहे वो ऑन्कोलॉजिस्ट हो, चाहे वो एंटी कैंसर डाइट एक्सपर्ट हो, चाहे मेडिकल कैनबिस हो, आयुर्वेद एक्सपर्ट हो, जिससे भी हो, तो वो आपको साइंटिफिकली चीजों का आंसर करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि आपके सारी क्वेरी सॉल्व हो जाए और आप अपना ट्रीटमेंट भी अच्छे से ले पाए। और जो ऐप है, जैसे आस्था ने बताया कि उसमें भी आस्क एक्सपर्ट है, तो वहां पे भी पूछ सकते हैं। बात करना और भी बेटर है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लिख नहीं पाते हैं, और उसमें वेलनेस प्रोग्राम्स है, कम्युनिटी है, और काफी सारी चीजें जो आपको जिनका और काफी टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, क्योंकि कैंसर में जो है तो ध्रुवा ने भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स शेयर की हैं कि हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, और कैंसर में ऐसी काफी सारी चीजें होती है कि हमें इसकी जगह ये यूज करना चाहिए। तो वहाँ पे ऐप में एक सेक्शन है वेलनेस टिप्स, वहाँ पे आपको काफी सारे टिप्स मिल जाएंगी, जो कि आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आएंगी एक पॉजिटिव तरीके से। तो आई विल, हाँ, मैं आपको एनकरेज करूंगी उसके लिए, और आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपको जो भी क्वेश्चन है सबका आंसर मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू, प्लीज टेक केयर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो इसी के साथ हमारी डिस्कशन तो ओवर हो गया है, एंड मैंने हमारी ऐप लिंक के नंबर दोनों शेयर कर दिया है, जिसको जो भी डाउट्स हैं वो उस पे पूछ सकते हैं। एंड संजीत जी का भी एक डाउट है कि पेट में कैंसर है, तो क्या राइप पपीता, जो पका हुआ पपीता है, वो खा सकते हैं या नहीं? तो वो ये पूछना चाहते हैं। मेरे को इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक मेडिकल सजेशंस है ना, ये वो स्पेसिफिक डॉक्टर ही बता सकते हैं। हम तो हाँ, तो संजीत जी, हाँ, उनसे लेना बेटर है। राइट। तो जो आस्था जो अपनी ऑन्कोन्यूट्रिशनिस्ट है त्रिवेणी जी, आप संजीत जी को उनसे कनेक्ट करवा दें। संजीत जी, आप अपना नंबर भी यहाँ पे चैट में दे सकते हैं, तो हम आपको जो डाइट एक्सपर्ट है उनसे कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि वो आपकी रिपोर्ट्स देख के, सारे पैरामीटर्स देख के फिर गाइड करेंगे कि आपके लिए वो सही है या नहीं है। जी, क्योंकि हर कैंसर में सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। तो सबसे बेस्ट है कि ऑन्कोलॉजिस्ट से, ऑन्कोन्यूट्रिशनिस्ट से ही आप कंसल्ट करें। थैंक यू, मुझे आपका नंबर मिल गया है, एंड हम आपको कनेक्ट कराएंगे अपनी ऑन्कोन्यूट्रिशनिस्ट से, और वो आपको इस पे गाइड कर देंगी। सो आस्था, आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप है ना व्हाट्सएप ग्रुप का भी यहाँ पे लिंक शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो जो मेंबर्स वहाँ पे नहीं है वो वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे डाइटिशियन वहाँ पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कम्युनिटी के और लोग भी हैं, आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप दूसरे मेंबर से भी कनेक्ट करिए, और वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच अदर। मैंने यहाँ पे चैट में लिंक भेज दिया ग्रुप का। थैंक यू। Okay, Dhruva ji, thank you so much. Wonderful, very, very inspiring session. And thanks to Vijay Menon for connecting us long back. Jiske the seeds that were planted long back, I'm seeing the flowers now. So happy to see you. Lovely, lively, energetic, inspiring, and lots of love. And thank you so much for the wonderful, inspiring, and informative session.
I'm sure it will help a lot of people and definitely spread a lot of positivity and happiness around. Yeah. Thank you. Thank you so much. Asta, over to you. Yeah. Asta? So, yes. So thank you so much, ma'am, for joining us today. And I'm sure कि काफी patients, caregivers सबको इससे काफी ज़्यादा help मिली होगी. And मैं सबको बोलना चाहूँगी, thank you so much for joining today. And we hope to see you in our next cancer healing talks. So thank you so much, everyone. Yeah, we do it every Saturday 5 PM and during the week हम लोग डॉक्टर्स के साथ में भी टॉक्स करते हैं. So जो ग्रुप है और जो ऐप है उस पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी नेक्स्ट सेशन होता है तभी. बट सैटरडे 5 o'clock डेफिनेटली होता है. Thank you. Thank you. Take care. Lots Thank you, of love. everyone. Thanks, Dhruva. Bye. Bye. Bye, everyone.